A very good morning, dear students. So, today we will be beginning with a full explanation of electricity and magnetism. I've already uploaded the video of this chapter, and in this, I will be uploading full explanation of this chapter. Kindly go through it and do whatever the question which will be provided to you. So, in the previous session, we have seen chapter 6 sound, and today we are going to see the electricity and magnetism. And today, our first topic is the law of magnetism. You know very well that magnetism has some properties and it is having a ability to attract to each other. So, let us see that what is the law of magnetism, which is very important for us to understand and important for your exams. सो डियर स्टूडेंट्स कुछ बेसिक टर्म्स की अगर बात करूँ सो प्रीवियस क्लास के अंदर क्लास 6 के अंदर आपने मैग्नेटिज्म को स्टडी किया है, मैग्नेट्स को आपने स्टडी किया है वहाँ पे। सो आई होप आपको मैग्नेट्स के बारे में, मैग्नेट से रिलेटेड बहुत सारी टर्म्स होती हैं उनके बारे में आपको अभी भी लर्न होगा। अगर लर्न नहीं है तो अगेन हम यहाँ पे उन टर्म्स को दोबारा से रिवाइज करेंगे। So dear students, first of all, let's discuss about the magnet. So what is a magnet? How we can define a magnet? So we can simply define a magnet is a substance which attracts iron, nickel and cobalt uh, species, or we can simply say objects which are made up of iron, cobalt, nickel, etc. Then we can simply say that the given substance or given object is a magnet because it has a property of attraction of iron objects, nickel objects, cobalt objects. नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब मैग्नेट, अगर मैग्नेट की हम बात करें सिंपली तो बहुत तरह के मैग्नेट्स हमें मिलती हैं। सो सिंपली बेसिकली यहाँ पे जो हम डील करेंगे वो हम सिंपली डील करेंगे जो बार मैग्नेट्स होती है। सो बार मैग्नेट्स की अगर मैं बात करूँ सो सिंपली बार मैग्नेट क्या होगा, एक बार टाइप का हमारा ऑब्जेक्ट होगा जो क्या करेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट के कुछ और अगर मैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करूँ अगर, सो सिंपली एक मैग्नेट के पास दो पोल्स प्रेजेंट होते हैं, टू पोल्स। अ मैग्नेट हैज two poles. One pole is south pole which is represented by capital S, and the other one is north pole which is represented by capital N. So a magnet always has टू पोल्स। एक मैग्नेट के हमेशा कितने पोल्स होंगे, दो पोल्स होंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस अबाउट द लॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिज्म के लॉज की। So dear students, if my voice is clear, you are listening me very well, then please type yes in the live chat box with your complete name, after which I will start our today's live session. If live chat box is not working in your phone, then please type in the comment box. So dear students, please be fast, join the live session. So dear students, let's start our today's live session. So the very first topic of our today's live session is laws of magnetism. So basically four laws हम यहाँ पे study करेंगे magnetism से related. So let's move on to the first law here. So first law here is a freely suspended bar magnet
जो एक मैग्नेट होती है, मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं। मैग्नेट हैज़ टू पोल्स, वन इज साउथ पोल एंड द अदर वन इज नॉर्थ पोल। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम यहाँ पे क्या करें, एक बार मैग्नेट को फ्रीली क्या कर दे, सस्पेंड कर दे, देन it always comes to rest along the north south direction. So सिंपली बात करता हूँ मैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास एक बार मैग्नेट थी, इसको हमने एक थ्रेड की हेल्प से क्या किया, यहाँ पे फ्रीली सस्पेंड कर दिया। नाउ अब जैसे ये क्या होगी, कुछ टाइम के लिए तो ये मूव करेगी, देन जैसे ये रेस्ट में आएगी, देन इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, वो होगी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में ये आएगी रेस्ट पे, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे रेस्ट पे आएगी। नाउ अब ऐसा क्यों है, बिकॉज हमें पता है जो हमारी अर्थ है, अर्थ का भी क्या होते हैं, उसके भी मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, यानी कि नॉर्थ एंड साउथ पोल्स होते हैं वहाँ पे भी। सो दैट्स वाई जो एक बार मैग्नेट होगी, अगर हम उसको सिंपली क्या करेंगे, सस्पेंड कर देंगे एयर में, देन वो भी कहाँ पे आके रेस्ट में आएगी, इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नाउ here the end point of the magnet that points towards the north is called the north pole of the magnet, and the end that points towards the south pole, तो अब जो एंड होगा मैग्नेट का, जो किस, देन उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ पोल बोलेंगे ऑफ द मैग्नेट, एंड द एंड दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स द साउथ इज कॉल्ड इट्स साउथ पोल. So dear students, this is the first law of magnetism, which simply states that when we suspend a magnet freely in the air, then it always comes to rest in the north south direction or along the north south direction. So dear students, I hope आपको फर्स्ट लॉ यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया है. Now let's move on to the second law of magnetism. So second law of magnetism here states that like poles repel and unlike poles attract. So यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक टू मैग्नेट्स, टू बार मैग्नेट्स हमने यहाँ पे लिए. सो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इन द एयर एज यू कैन सी हेयर. नाउ जैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरी मैग्नेट को क्या करेंगे, इस मैग्नेट के क्लोज, इसके पास लेके जाएंगे. देन अब देखें यहाँ पे जो दूसरी मैग्नेट है, उसका हम कौन सा पोल यहाँ पे उस मैग्नेट की तरफ लेके जा रहे हैं, वो है हमारा नॉर्थ पोल. नाउ डियर स्टूडेंट्स, जैसी नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे के क्या आएंगे, यहाँ पे कांटेक्ट में आएंगे, सो दोनों क्या हो गए, हमारे सेम पोल्स हो गए. देन ये यानी कि लाइक पोल्स, देन इट इजली क्या करेंगे, दोनों ये एक दूसरे को रिपेल यानी कि एक दूसरे से दूर चले जाएंगे. नाउ इन द सेकंड केस, हेयर ऑल्सो अ bar magnet freely suspended in the air. Now we have taken the other magnet, and the other magnet, the south side or the south pole, when we जब हम क्या करेंगे, इस साउथ पोल को इस मैग्नेट के कहाँ पे लेके जाएंगे, दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल के क्लोज लेके जाएंगे. देन सिंपली वी कैन ऑब्जर्व हेयर दीज आर दी अनलाइक पोल्स. ये दोनों क्या है हमारे, ये दोनों अनलाइक पोल्स हैं. देन ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ पे अट्रैक्ट करेंगे. सो दैट्स वाई वी कॉल दैट अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड like poles repel each other. So dear students, now here if we bring the north pole of a magnet near the north pole of a freely suspended magnet, the poles of the magnet repel. But if we bring the north pole of a magnet near the south pole of a freely suspended magnet, the poles of the magnets attract. So that's why we simply say like poles repel and unlike poles of magnet, which simply states that like poles of a magnet repel each other and unlike poles of a magnet attracts each other. So dear students, I hope आपको यहाँ पे ये सेकेंड लॉ भी समझ में आ गया है अच्छे से. सो अगर आपको क्लियर है सेकेंड लॉ एंड फर्स्ट लॉ, देन प्लीज टाइप यस इन द लाइव चैट बॉक्स, आफ्टर विच आई विल मूव ऑन टू द थर्ड लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म.
So dear students, now let's move on to the third law here. So third law की अब हम बात करते हैं यहाँ पे. So dear students, according to the third law, poles of a magnet exist in pairs. So थर्ड लॉ क्या स्टेट करता है यहाँ पे कि जो एक मैग्नेट है उसके जो पोल्स होंगे वो हमेशा कैसे एग्जिस्ट करेंगे, पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे. इट मीन्स अ मैग्नेट ऑलवेज हैज अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल. सो मैग्नेट, हम कोई भी मैग्नेट यहाँ पे ले, देन उस मैग्नेट में हमेशा क्या होगा, एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल हो जाएगा. नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल हेयर. So dear students, if we take a bar magnet and cut it into two pieces, the two new magnets will have their own north and south poles. So dear students, now let's observe here in the figure. So यहाँ पे सबसे फर्स्ट हमारे पास एक बार मैग्नेट है. नाउ इस बार मैग्नेट का एक साउथ पोल है और एक क्या है, इसका नॉर्थ पोल है. नाउ अगर हम क्या करें, इस बार मैग्नेट को ब्रेक करें, सेंटर से ब्रेक कर दें हम इसको टू पीसेस में, देन एक पीस ये आ जाएगा हमारे पास, एक पीस ये आ जाएगा. नाउ अब जो ये फर्स्ट वाला पीस था इसके पास तो साउथ पोल आया. नाउ जो सेकंड वाला पीस था उसके पास क्या आया, नॉर्थ पोल आया. नाउ फर्स्ट पीस में यहाँ पे साउथ पोल है, नॉर्थ पोल नहीं है, देन जो इसका अदर एंड होगा वहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, नॉर्थ पोल फॉर्म हो जाएगा. नाउ सेकंड पीस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, सो इसमें नॉर्थ पोल था, यहाँ पे साउथ पोल नहीं था, देन जो अदर एंड था वहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, वहाँ पे साउथ पोल फॉर्म हो जाएगा. सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स हाउ व्हेन वी break a magnet or when we cut a magnet into two pieces, then the two new magnets will have their own north and south poles. Now dear students, again if we further divide these two smaller magnets, then these four new magnets will have their own north and south पोल्स. नाउ अब जो हमारे पास टू पीसेस थे मैग्नेट के, अगर हम इनको अगेन फर्दर क्या करें, डिवाइड या कट करें या सिंपली ब्रेक करें, देन यहाँ पे क्या होगा, जिस पीस में जो पोल नहीं था वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो एग्जिस्ट कर जाएगा. फॉर एग्जांपल जैसे सिंपली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सो ये फर्स्ट वाला पीस था, इसके पास साउथ पोल था, नाउ नॉर्थ पोल नहीं था यहाँ पे, देन ये जो सेकंड इसका जो साइड थी वहाँ पे नॉर्थ पोल एग्जिस्ट कर जाएगा. अगेन जो सेकंड पीस था यहाँ पे, इसमें नॉर्थ पोल था बट साउथ पोल नहीं था, देन यहाँ पे साउथ पोल एग्जिस्ट कर जाएगा. एंड अगेन सेम कंडीशन लाइज इन द थर्ड एंड द फोर्थ piece of magnet. So dear students, from this observation we can simply say a magnet always has two opposite poles. It is important to note that we can never isolate the north pole of a bar magnet from its south pole. Magnetic poles always occur in pairs. So dear students, from this observation we can simply say a magnet always has टू अपोजिट पोल्स. सेम पोल्स कभी नहीं होंगे एक मैग्नेट के अंदर, हमेशा क्या होंगे, टू पोल्स होंगे, और वो दोनों पोल्स भी क्या होंगे, हमेशा वो भी अपोजिट होंगे. यानी कि अगर एक नॉर्थ पोल है, देन सेकंड क्या होगा, वहाँ पे साउथ पोल होगा. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों ही नॉर्थ पोल हो जाए या फिर दोनों ही साउथ पोल हो जाए. नाउ सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या हमने ऑब्जर्व किया कि कभी भी हम क्या नहीं कर सकते हैं, एक बार मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल को एक दूसरे से सेपरेट यानी कि उनको आइसोलेट नहीं कर सकते हैं. इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म एंड आई होप आपको यहाँ पे थर्ड लॉ भी ये समझ में आ गया है. सो बहुत ही ईजी यहाँ पे लॉज थे आपके. फर्स्ट लॉ हमने डिस्कस किया विच स्टेट्स दैट when we suspend a bar magnet freely in the air, then it always comes to rest along the north south direction. Second law हमने स्टडी किया, like poles repel each other and unlike poles attract each other. Now थर्ड लॉ में हमने डिस्कस किया, poles of a magnet always exist in pairs. Now dear students, let's move on to the fourth एंड द लास्ट लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म. अब हम फोर्थ एंड लास्ट लॉ पे मूव करते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द फोर्थ लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम एट द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट. सो जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है किसी भी मैग्नेट की, वो कहाँ पे मैक्सिमम होगी, वो मैक्सिमम होगी उसके पोल्स पे. कहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी, वो उसके पोल्स पे मैक्सिमम हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल
जैसे मैं सिंपली यहाँ पे एक बार मैग्नेट को ड्रॉ करता हूँ। सो ये हमारे पास यहाँ पे एक बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट का हमारे पास साउथ है और ये उसका नॉर्थ पोल। नाउ अब यहाँ पे जो ये साउथ पोल होगा और जो ये नॉर्थ पोल होगा, यहाँ पे इस मैग्नेट की जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी, यानी कि जो इसकी अट्रैक्शन और रिपल्सन की जो कैपेसिटी होगी, वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ पे होगी, इन्हीं दोनों पोल्स पे हो जाएगी। सो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपका। सो क्वेश्चन यहाँ से आपको डायरेक्ट मिल सकता है, द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम एट दी। सो कहाँ पे होगी मैक्सिमम, एट दी पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द 4 लॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। आई होप आपको सभी लॉज यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गए हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पे अब हम मूव करते हैं यहाँ पे। सो नेक्स्ट टॉपिक हमें यहाँ पे गिवन है रिपल्शन, अ श्योर टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म। सो मैग्नेटिज्म को अगर हमें फाइंड करना हो, देन सिंपली वहाँ पे क्या होगा, हम ऑब्जर्व करेंगे रिपल्शन को। सो रिपल्शन क्या होगा, सो जैसे अभी हमने सेकंड लॉ में स्टडी किया था, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, यानी कि अगर हम सेम पोल्स को क्या करेंगे, एक दूसरे के क्लोज लाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, देन वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, रिपेल, यानी कि एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं इस टेस्ट को हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, a magnet can attract the opposite pole of other magnet as well as the magnetic substances, for example iron, cobalt and nickel. So dear students, we know that a magnet attract the opposite poles of other magnet, and it can also attract the magnetic substances such as iron, cobalt, nickel. Now, so if a magnet attracts another object, we cannot say that the other object is a magnet. So dear students, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास एक मैग्नेट है, हमारे पास क्या है यहाँ पे, एक मैग्नेट है। सो एक मैग्नेट, उसके पास क्या होगा, उसका साउथ पोल होगा एंड उसका नॉर्थ पोल हो जाएगा। सो दिस इज द साउथ पोल एंड दिस इज द नॉर्थ पोल। नाउ अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है। नाउ अब जो ये ऑब्जेक्ट है, हमें पता नहीं है ये क्या है। नाउ अगर हम सिंपली इस ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लेके आए, इस मैग्नेट के क्लोज लेके आए, और ये क्या कर ले मैग्नेट, इसको अगर इसको क्या कर ले, अट्रैक्ट कर ले, क्या कर ले, इसको अट्रैक्ट कर ले, देन हम सिंपली क्या बोल सकते हैं कि जो ये सब्सटेंस है, ये क्या है, ये एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है। क्या है, ये एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है, बिकॉज मैग्नेट ने इस सब्सटेंस को क्या किया, अट्रैक्ट किया। बट वी कैन नॉट से दैट दिस सब्सटेंस इज ऑल्सो अ मैग्नेट, यानी कि हम इस सब्सटेंस को एक मैग्नेटिक सब्सटेंस तो बोल सकते हैं, यानी कि हो सकता है ये आयरन हो, कोबाल्ट हो, निकल हो, या फिर इन तीनों में से ही किसी का क्या हो, बना हुआ हो, बट हम इसको एक मैग्नेट नहीं बोल सकते हैं। नाउ अब कैसे हम पता करेंगे यहाँ पे कि जो ये सब्सटेंस था हमारा, ये मैग्नेट है। सो बट इफ द मैग्नेट रिपेल्स द ऑब्जेक्ट, देन वी कैन श्योरली से दैट द ऑब्जेक्ट, द अदर ऑब्जेक्ट इज अ मैग्नेट। इस ऑब्जेक्ट को, इस सब्सटेंस को रिपेल कर दे, यानी कि जैसे हम इसको इसके क्लोज लेके आए और ये इसको क्या कर दे, रिपेल कर दे, यानी कि इसको दूर भेज दे या खुद इससे दूर हो जाए, देन उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में हम सिंपली बोल सकते हैं कि ये जो सब्सटेंस है, ये क्या है, एक मैग्नेट है। नाउ अब ऐसा क्यों बोला मैंने, सपोज ये एक मैग्नेटिक सब्सटेंस था, जैसे ही मैं इसको इस मैग्नेट के क्लोज लेके आऊँगा, मैग्नेट इसको अट्रैक्ट कर लेगी। नाउ अब अगर ये क्या हो, ये नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस हो, यानी कि ये आयरन, कोबाल्ट, निकल को छोड़ के बाकी किसी का भी बना हुआ हो, देन मैग्नेट इसको अट्रैक्ट ना ही अट्रैक्ट करेगी और ना इसको रिपेल करेगी। सो अगर मैग्नेट के ने इसको ना ही अट्रैक्ट किया ना ही रिपेल किया, देन मैं सिंपली इसको बोलूँगा ये एक नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है। बट अगर मैं यहाँ पे क्या लेके आऊँ, एक मैग्नेट को क्लोज लेके आऊँ, सपोज यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास एक मैग्नेट है, क्या है ये हमारे पास एक यहाँ पे मैग्नेट है। नाउ अब अगर इस मैग्नेट का क्या होगा, अनलाइक पोल इसके क्लोज होगा, देन ये अट्रैक्ट हो जाएगी। नाउ अगर इसका क्या हो, अनलाइक पोल हो जाए, सपोज यहाँ पे आ जाए नॉर्थ पोल एंड इधर भी नॉर्थ पोल है, देन ये इसको सिंपली क्या करेगी, यहाँ पे रिपेल कर देगी, यानी कि यहाँ पे रिपल्शन हो जाएगा। सो हम सिंपली बोलेंगे कि जो अदर सब्सटेंस था हमारा, वो क्या है, वो हमारा एक मैग्नेट है, बिकॉज यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे रिपल्शन हो गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स वाई वी से दैट
रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म। रिपल्शन क्या है? रिपल्शन एक श्योर टेस्ट है मैग्नेटिज्म का, यानी कि अगर दो सब्सटेंस क्या शो कर रहे हैं यहाँ पे, रिपल्शन शो कर रहे हैं, देन वी कैन सिंपली से दैट बोथ द सब्सटेंस आर मैग्नेट। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया है रिपल्शन का केस, यहाँ पे जो ये टेस्ट था हमारा। सो इस टेस्ट को हम परफॉर्म करके सिंपली क्या फाइंड कर सकते हैं, वेदर द अदर ऑब्जेक्ट इज अ मैग्नेटिक सब्सटेंस और अ मैग्नेट। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया है टॉपिक। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पे अब हम मूव करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हेयर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सो डियर स्टूडेंट्स, सिंपली अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इलेक्ट्रिसिटी की, सो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी टू फिनोमिनाज शो करती है, या फिर सिंपली हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी शोज टू इफेक्ट्स। कितने इफेक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी शो करती है? टू इफेक्ट्स को शो करती है। सो आई एम राइटिंग हेयर इलेक्ट्रिसिटी electricity simply shows two effect. First one is heating effect and second one is magnetic effect. So electricity always shows two effects. First one is heating effect and second one is magnetic effect. Heating effect को हम बोलते हैं heating effect of electricity and magnetic effect of electricity. Now first of all, here we discuss about the magnetic effects concept of electromagnetism. So electromagnetism की अगर मैं यहाँ पे simply बात करूँ, so electro means यहाँ पे आता है हमारे पास electricity एंड मैग्नेटिज्म मीन्स हम बात कर रहे हैं मैग्नेट की या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। सो सिंपली यहाँ पे जो टर्म है ये हमें एक्सप्लेन कर रही है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मैग्नेटिक इफेक्ट को या फिर मैग्नेटिज्म को शो करती है। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डिस्कस हाउ वी कैन से दैट इलेक्ट्रिसिटी और सिंपली करंट शोज मैग्नेटिक इफेक्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, the magnetic effect of current was discovered by Oersted in 1820. So Oersted यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे हमारे जिन्होंने 1820 में क्या किया था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को डिस्कवर किया था। Oersted found that a wire carrying a current was able to deflect a compass needle. सो यहाँ पे ओरियस्टेड ने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट और द ऑब्जर्वेशंस दैट द ओरियस्टेड सी इन हर एक्सपेरिमेंट शोज दैट व्हेन अ करंट कैरिंग वायर, हमारे पास क्या है, हमारे पास सिंपली एक करंट कैरिंग वायर है और अगर हम उस करंट कैरिंग वायर के क्लोज क्या लेके आए, एक कंपास को लेके आए, एक कंपास निडल को लेके आए, देन सिंपली क्या होगा, वहाँ पे जो कंपास निडल है वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो नाउ the compass needle is a tiny magnet which can be deflected only by a magnetic field. अब कंपास निडल की अगर हम सिंपली बात करें, सो कंपास निडल जो होती है सिंपली एक टिनी मैग्नेट होती है। अब हमें पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। डिफ्लेक्ट मीन्स यहाँ पे रिपल्शन शो हो रही है। सो एक मैग्नेट को दूसरी ही मैग्नेट क्या कर सकती है, वहाँ पे रिपेल कर सकती है, कोई और सबस्टांस या कोई और ऑब्जेक्ट उसको रिपेल नहीं कर सकता है। सो यहाँ पे ओरियस्टेड ने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे ही वो एक कंपास निडल को कहाँ पे लेके आ रहा है, एक करंट कैरिंग वायर के क्लोज लेके आ रहा है, देन सिंपली वहाँ पे वो निडल क्या हो गई, वो डिफ्लेक्ट हो गई। अब ऐसा हुआ वहाँ पे, सो सिंपली वहाँ पे क्या है कि जो वो वायर है उसमें कहीं ना कहीं मैग्नेटिज्म शो हो रहा है। सो दैट्स वाई वी सिंपली से द करंट और इलेक्ट्रिसिटी शोज मैग्नेटिक इफेक्ट। सिंस a current carrying wire was able to deflect a compass needle, it was concluded that a current flowing in a wire always gives rise to a magnetic field around it. सो मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, सो प्रीवियस क्लास के अंदर आपने मैग्नेट्स को स्टडी किया, वहाँ पे आपने मैग्नेटिक फील्ड को भी स्टडी किया है।
सो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? सो अगेन यहाँ पे मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ। सो मैग्नेटिक फील्ड हमारा वो एरिया होगा अराउंड द मैग्नेट, मैग्नेट के अराउंड या उसकी सराउंडिंग में वो एरिया होगा जहाँ पे दूसरी मैग्नेट उस फर्स्ट मैग्नेट का अट्रैक्शन या रिपल्शन क्या होगा, उसको ऑब्जर्व कर पाएगी, या फिर कोई ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस है अगर हमारे पास, वो क्या होगा, उस एरिया में आते ही मैग्नेट से क्या हो जाएगा, वो अट्रैक्ट हो जाएगा। उस एरिया को या उस फील्ड को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। नाउ the importance of magnetic effect of current lies in the fact that it gives rises to mechanical forces. Now अब importance क्या है हमारे लिए magnetic effect of current की? So importance हमारे लिए ये है कि ये effect क्या करता है यहाँ पे, ये effect यहाँ पे mechanical forces को produce करता है। Now अब मैकेनिकल फोर्सेस का कहाँ कहाँ पे यूज होगा हमारे लिए? सो फॉर एग्जांपल इन द इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, टेलीफोन, रेडियो, ऑल यूटिलाइज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सो ये सभी डिवाइसेस क्या करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे ही वर्क करते हैं। द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है करंट का, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी बोलते हैं, which means electricity produces magnetism. That's why we simply say that electricity produces magnetism. So dear students, this is the concept of the electromagnetism. I hope आपको टर्म जो electromagnetism टर्म है वो आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गई है। Now dear students, अब हम बात करते हैं उस एक्सपेरिमेंट के जो ओरियस्टेड ने परफॉर्म किया था और जिसके हेल्प से उन्होंने बताया कि जो करंट है या इलेक्ट्रिसिटी है वो मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करती है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, वी कैन ऑल्सो परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट इन आवर होम्स। घर पे भी हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। सो चलिए देखते हैं हमें यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी सिंपली। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गेट सम वायर्स। हमारे पास कुछ वायर्स होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के हमें वायर्स यहाँ पे लेने हैं। नाउ एक हमें बैटरी लेनी है, एक हमें कंपास चाहिएगा और एक हमें यहाँ पे स्विच चाहिएगा फॉर ऑन एंड ऑफ करने के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट सेटअप है हमारा फिगर ए में, जैसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पे क्या किया, वायर्स को अरेंज किया, वायर्स को बैटरी से कनेक्ट किया। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, दिस इज दी बैटरी। ये हमारी बैटरी है जो क्या प्रोड्यूस करेगी, करंट प्रोड्यूस करेगी। ये हमारा यहाँ पे स्विच हो गया है और ये हमारा यहाँ पे कंपास है। नाउ जैसे अब देख सकते हैं आप यहाँ पे जो स्विच है, ये सिंपली यहाँ पे क्या है, ये स्विच यहाँ पे ओपन है, यानी कि यहाँ पे जो सर्किट है हमारा वो क्लोज्ड सर्किट या कंप्लीट सर्किट नहीं हुआ। नाउ लेट्स ऑब्जर्व टू द सेकंड फिगर। सो सेकंड फिगर में हमने यहाँ पे क्या किया, स्विच को क्लोज किया, यानी कि सिंपली सर्किट हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा, इसके थ्रू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके थ्रू हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास होना स्टार्ट हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कंपास की। सो डियर स्टूडेंट, जैसा आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पे जो कंपास है उसकी जो निडल थी वो नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट की हुई थी। कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट था वो, नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट थी। नाउ अब हम सेकंड केस की बात करते हैं। सो यहाँ पे क्या हो गया, चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो गया। सो जो ये एरो मार्क हैं कहाँ पे, वायर्स पे, सो ये हमें ऑब्जर्व करा रहे हैं करंट। करंट यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है। जैसे करंट फ्लो होगा यहाँ पे, सो जो ये वायर्स थे इनमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये मैग्नेटिज्म शो करना स्टार्ट करेंगे। देन यहाँ पे जो मैग्नेटिक निडल है उसका जो एरो हेड है वो नॉर्थ डायरेक्शन में से दूसरी डायरेक्शन में क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। सो इस तरह से ओरियस्टेड ने क्या किया था, अपना सेटअप का अरेंजमेंट किया था और इस तरह से उन्होंने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने वहाँ पे magnetic effect को observe किया in the current. So dear students, this is the experiment that demonstrates that the magnetic effect of current. So dear students, I hope आपको यहाँ पे ये experiment भी समझ में आ गया है। So अगर आपको clear है यहाँ पे ये experiment, then please type yes in the live chat box.
Yes, beta, there is a difference between electricity and current. No, beta, there is no difference between electricity and current. We can simply say current is also the flow of electrons or charged particles, and electricity is also known as or also defines as the flow of electrons or charged particles. There is no difference between electricity and current. सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लाइव सेशन में हम यही टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. सो आई होप आज हमने जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किए, लॉज ऑफ मैग्नेटिज्म हमने स्टडी किया, रिपल्शन अ श्योर टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म हमने स्टडी किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हमने स्टडी किया, एंड हमने एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया जो ओरिस्टेड ने परफॉर्म किया था. सो आई होप आपको ये सभी टॉपिक्स अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो गए हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लाइव सेशन को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लाइव सेशन. एंड नेक्स्ट लाइव सेशन से हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को स्टडी करना. फिर एडवांटेजेस को हम स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के एडवांटेजेस को, एप्लीकेशंस को. सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव सेशन, एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लाइव session.